Dominica has conferred its top highest honor on, in fact, Prime Minister Narendra Modi. What we are given to understand at this point of time is that Dominica, who has decided to confer its top award on Prime Minister Narendra Modi for his contributions, in fact, to the Caribbean nation during the COVID-19, has decided to give this award, prestigious award, to Prime Minister Narendra Modi and his dedication to enhancing the bilateral partnership between India and Dominica. The Prime Minister, who is in Guyana on the last leg of his three-nation visit, was conferred the Dominica Award of Honor by President Sihanouk Bouton of Dominica during the India-CARICOM Summit. Prime Minister Narendra Modi also expressed gratitude to the President of Dominica for conferring the Dominica Award of Honor. He dedicated it to the 140 crore people of India. Guyana and Barbados will also confer their top awards on Prime Minister Narendra Modi, bringing his tally of international honors to a total 19. In accepting the offer of the award, Prime Minister Narendra Modi emphasized the importance of collaboration in the tackling of global challenges such as climate change, geopolitical conflicts, regional issues, and affirmed India's commitment to working alongside Dominica and the Caribbean in addressing these issues. Let's in fact now listen in. राष्ट्रपति बटन, आप इस पुरस्कार को देने के लिए स्वयं गयाना आई है। इस स्पेशल जेस्चर्स के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और डोमिनिका दो डेमोक्रेसीज हैं। साथ साथ हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के भी रोल मॉडल है। दोनों ही देशों में महिला राष्ट्रपति हैं। भारतीय राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी जनजातीय समाज से आने वाली पहली राष्ट्रपति है। उसी तरह राष्ट्रपति बटन भी डोमिनिका की पहली इंडिजीनियस राष्ट्रपति है। आप दोनों विश्व की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फ्रेंड्स, भारत और डोमिनिका के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। 19वीं सदी में कई भारतीयों ने डोमिनिका को अपना घर बनाया। उनके द्वारा रखी गई आधारशिला हमारे संबंधों को मजबूत नींव प्रदान करती है। उसी से प्रेरित होकर हम डोमिनिका के विकास कार्यों और कैपेसिटी बिल्डिंग में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। भारत के लिए यह गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोविड जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके। कैरिकोम क्षेत्र में डोमिनिका हमारा बहुमूल्य पार्टनर है। आने वाले समय में हम हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज दिए गए सम्मान से हमारी यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। All right, Manohar Kesari joins me live on the broadcast. Viewers, Manohar, very good morning to you. In fact, this is the first visit by an Indian head of the state to the Caribbean nation in more than 50 years. And there have been much emphasis on the basis of the bilateral ties and strengthening of enhancing the cooperation between India and the Caribbean nation. And when we talk about Dominica, in fact, a lot of specific comments were made by Prime Minister Narendra Modi, also
also focusing on how the president of both the nations are women, and these are also setting a precedent for, in fact, all the women and the little girls in the world. Share more details about what are the areas on which India and Dominica are, in fact, eyeing to enhance the cooperation going forward. और देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरिगाई ऋतु की जो समिट भारत और कैरिकॉम के बीच में जब उन्होंने संबोधन किया, और साथ साथ जहाँ तक डोमिनिका का सवाल है तो डोमिनिका की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरह से भारत ने उस वक्त वैक्सीन मुहैया कराया था, और जो सम्मान मिला है, ये सम्मान जो है सभी भारत के भाई और बहनों के लिए, भारत के उन तमाम जनता को समर्पित है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरह से भारत में महिलाओं को सम्मान दिया है, भारत की जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को है उनको सम्मान दिया है। भारत की राष्ट्रपति महिला है और एसटी कम्युनिटी से आती है, उनको सर्वोच्च पद पर सम्मानित किया है, उन्हें राष्ट्रपति बनाया है। तो भारत महिलाओं को कितना सम्मान देता है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, सारी चीजों को कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डोमिनिका के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, मेडिसिन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, ट्रेड की बात हो, इन सारे इश्यूज को लेकर के प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई है और डोमिनिका को जहाँ तक हो सके सपोर्ट करने की बात की है। दूसरी बात है केरिगाई कंट्रीज को लेकर के प्रधानमंत्री ने 7 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर हम कैरिकॉम का फुल फॉर्म देखें, इन सारे लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा है, चाहे कैपेसिटी की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, इन सारे फैक्टर्स को मजबूती देने की बात उन्होंने कही है। और आने वाले टाइम में अगर स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हो, या फिर हम वहाँ के डिफेंस सेक्टर में अगर ट्रेन कर सके, उन्हें डेवलप कर सके। इसके अलावा भारत कई केरिगाई देशों में जो है सृजन ऑफिस केंद्र भी खोलने जा रहा है, जिससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केरिगाई देशों में अलग अलग देशों में, चाहे हम डोमिनिका की बात करें, सुरीनाम की बात करें, या फिर हम गयाना की बात करें, सभी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। All right, Manohar, thank you for in fact adding these details as India continues to maintain and reform the relationship with these nations, where in fact Prime Minister Narendra Modi is making visits and also reinforcing the trust between the two developing nations. Now moving on, President of Guyana, Dr. Irfan Ali, also mentioned while conferring the highest award to Prime Minister Narendra Modi that he had a very fruitful time with Prime Minister Narendra Modi in conversing about many issues, where in fact he has also stated that the visit by Prime Minister Narendra Modi is in fact very crucial, given at this point of time the president of both the nations do enjoy, and confers the Order of Excellence to Prime Minister Narendra Modi. And Prime Minister Narendra Modi is addressing the session. Let's now cut across. राष्ट्रपति इरफान अली, एक्सेलेंसीज, विशिष्ट अतिथिगण, फ्रेंड्स, नमस्कार। गयाना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति इरफान अली का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। Your Excellency President Irfan Ali, Excellencies, distinguished guests, friends, Namaskar. I express my heartfelt gratitude to my friend President Irfan Ali for conferring upon me Guyana's highest award. यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति
आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। This honor does not only belong to me, but also to 1.4 billion Indians. This is a living proof of your deep commitment towards our relations, which will continue to inspire us to move forward in every field. फ्रेंड्स, भारत और गयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है। Friends, India-Guyana relations are based on our shared history, cultural heritage, and deep mutual trust. इन संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में राष्ट्रपति इरफान अली का निजी रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके नेतृत्व में हम हर दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज की चर्चाओं में भी मैंने भारत के लोगों के प्रति उनके स्नेह और आदर को महसूस किया। President Irfan Ali has personally contributed immensely in taking these relations to unprecedented heights. Under his leadership, we are continuously moving forward in every direction. Even in today's discussions, I felt his affection and respect for the people of India. भारत भी गयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। दो डेमोक्रेसीज के रूप में हमारा सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है। All right. All right, my colleague Manohar Kesari joins me live on the broadcast. Manohar, as in fact heard live by Prime Minister Narendra Modi, how more emphasis is being given on the significance on the personal relationships and the rapport between the heads of state of both the nations. When in fact Prime Minister Narendra Modi has been conferred this award where he has dedicated the award to the people of the nation, people of country. He also said that India also shares a lot of relevance and a lot of similarities with the Caribbean nation. Share more details about it. हाँ बिल्कुल, भारत और गयाना का जो संबंध है वो बहुत पुराना संबंध है। याद होगा उस वक्त जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था, और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो 150 साल से ज्यादा का रिश्ता भारत और गयाना का रहा है। वापसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 58 साल के बाद गयाना पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री था एक निजी आवाज 24 साल पहले गयाना आया था। लेकिन जब 1832 की बात करें तो जब भारत के मजदूर जब गयाना काम करने के लिए गए थे, उस वक्त से लेकर के अब तक अगर आप देखें तो गयाना में करीब 40% जो पॉपुलेशन है वो भारतीय मूल के हैं, NRI है, जिन्होंने गयाना को पूरी तरह से संवारा है, सजाया है और GDP में बहुत ज्यादा योगदान है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना सरकार ने, अब आप देखिए कल किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया, चाहे राष्ट्रपति इरफान अली की बात करें, वहां के प्रधानमंत्री की बात करें और पूरी करीब 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर उनके स्वागत के लिए खड़े थे और उनका भव्य स्वागत किया गया। जब वो होटल पहुंचे वहां भी भारतीय कल्चर, भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए का स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गयाना और भारत के रिश्ते को और कैसे मजबूती दी जाए, इसके लिए हम आगे काम करते रहेंगे। कई 5 ऐसे अलग अलग पॉइंट हैं जिसे लेकर के MOU साइन किया है
जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीमेडिसिन की बात हो, ट्रेड की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, एनर्जी सेक्टर की बात हो, इन सब को लेकर के बातचीत की है। और मिलेट याद होगा कि प्रधानमंत्री ने मिलेट ईयर भी बनाया था, और जब G20 समिट हुआ था उस समय भी मिलेट फूड की काफी ज्यादा चर्चा थी। तो इंडिया से मिलेट भी वहां पहुंचाए गए थे। तो कई ऐसे चीज हैं जिसे लेकर के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। प्रधानमंत्री को गयाना का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे भी उन्हें नवाजा गया है। और सबसे बड़ी बात है ना, जो जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन की चाबी जो है तो उन्हें दी गई है सम्मान के तौर पर। तो ये भी बहुत ज्यादा अहम बात है कि किस तरह से दोनों देशों के गैस्टर्स हैं, किस तरह से वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश को हाथों पे लिए हुए हैं। और दोनों के सम्मान के साथ जो बायलेटरल मीटिंग हुई है इरफान अली और भारत के प्रधानमंत्री वो आगे भविष्य में जो है तो एक नई चीज तैयार करेगा, एक नया इतिहास तैयार करेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.